ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी रजनी। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियां दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं जो कि एक सॉन्ग रहने वाला है। सो वीडियो पर रिएक्शन देने से पहले मैं आपको सॉन्ग का नेम बता देता हूँ। सो गाइस जो आज के सॉन्ग का नेम है वो है रेडी टू डाई, बॉब बी रंधावा, MTV हसल 03 रिप्रेजेंट। सो गाइज बेसिकली जो सॉन्ग का नेम है वो है रेडी टू डाई और जो सिंगर है इसके वो है बॉब बी रंधावा। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एक शो है जिसपे ये रंधावा जी जो सिंगर हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें इन्होंने सिद्धू मूसेवाला पाजी को ट्रिब्यूट दिया अपने सॉन्ग के थ्रू, तो इसलिए सॉन्ग का नेम है रेडी टू डाई। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सॉन्ग को एंजॉय करोगे और सिद्धू मूसेवाला पाजी के जस्टिस के लिए प्रे करोगे। सो गाइज बिना देरी किए पहले सॉन्ग का नेम सॉन्ग सुनते हैं। और गाइज मैं इस सॉन्ग का जो वीडियो का लिंक होगा ना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ये पूरा सॉन्ग वहाँ पे सुन सकते हैं। सो गाइज बिना देरी के पहले सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें वीडियो कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Three, two, one. Yeah. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਦਾ ਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਫ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਵੈਰ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਚਰਚੇ, ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨੇ ਹੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਫੋਕੇ ਫੈਂਟਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਰਬਾਜੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਟੱਕਰੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਐਂਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਕਾਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰ ਛੇੜਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੜਾਈ ਜੱਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਫਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਵਿਆਹੀ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਚਾਕਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆਖਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਐਂਟੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜੋ ਕਹਾਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਏ ਸਜ਼ਾ, ਬਣੇ ਫੇਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ ਵੈਰ ਸੋਣੀਏ, ਸਾਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਕਹਿਰ ਸੋਣੀਏ। ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੇਮ ਪੈਣੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰਵਾ ਦੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਵੇ। ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ੀਦਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਖੋਟੀ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨਾ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਨਿੱਦੂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਬੋਬ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰੋ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਬੜਾ ਕਰ ਛੱਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾ ਵੱਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਰੇੜਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੜਾਈ ਅੱਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਐਂਡ ਨੇੜੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਐਂਡ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਤੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨਿਤਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨਿਤਨੀ ਜੰਮਦੇ ਯਾਰੋ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਰ ਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਰ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਹਿਪ ਹੌਪ ਕੀਟਾ ਕਰ ਢੇਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਗਰ ਹਨੇਰ 29 ਮਈ ਬੜੀ ਮਨਹੂਸ ਸੀ, 29 ਮਈ ਬੜੀ ਮਨਹੂਸ ਸੀ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਟਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਿਆ। ਗੋਲੀ ਤੜ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੜ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੇਰ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ ਡਰੇਕ ਦੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੱਗ ਦਿਸਦੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਗੋਰਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਏ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜੰਮਦੀ ਮੂਸਿਆ ਮੂਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇ ਰੱਬ ਸਾਥੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇ ਰੱਬ ਸਾਥੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇ ਰੱਬ ਸਾਥੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋ हाँ जी गाइस सॉन्ग तो हो गया खत्म और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी ट्रिब्यूट थी बॉब बी रंधावा जी की। सो गाइस मेरे व्यूज जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा। मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा लेकिन ये सैड सॉन्ग ही था। हमें मतलब कि याद दिला दिया जब सिद्धू मूसेवाला जी को मारा गया था 29 मई का दिन, तो मतलब कि हमारे लिए तो ये सैड सॉन्ग ही था, लेकिन इन्होंने अच्छी ट्रिब्यूट दी है। इन्होंने बताया कि वो मतलब कि बहुत ही दलेर थे, तो सभी जो उनकी जो पहुंच थी ना सिद्धू मूसेवाला जी की पहुंच हॉलीवुड तक थी, सभी पंजाबी सिंगर्स तो इनके आगे पानी भरते थे। तो वो कह रहे हैं कि 29 मई का दिन कितना मनहूस दिन था, जब मतलब कि सभी गिद्दड़ों ने मतलब कि शूटर से भी तो गीदड़ ही थे एक तरह के, उन्होंने सभी ने मिलकर एक शेर को घेर लिया, लेकिन फिर भी वो इतने दलेर थे कि वो भागे नहीं और आराम से बैठे रहे। उनको गोलियां बजती रही लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक मतलब के निडर व्यक्ति की मौत मरी है, भागे नहीं है वो। तो उन्होंने बताया कि उनका ये आपके पास जो हॉलीवुड तक के जो सिंगर थे ना, वो उनके आगे पानी भरते थे, उनको इतना मतलब के याद करते थे ना, इतना रुतबा था कि उनकी पहुंच हॉलीवुड तक के सिंगर्स तक थी। तभी तो बाहर से सभी हॉलीवुड के सिंगर जो हैं उनके घर आए थे उनके पिताजी से मिलने के लिए। उनका इतना रुतबा था तभी तो वो आए ना, कुछ तो उनमें बात होगी तभी वो उनके घर सभी आए, उनके फादर से मिलने के लिए आए। तो सभी पंजाबी सिंगर आज तो जो जितने भी गाने हैं पंजाबी सिंगर जो गाते हैं कोई भी उन्हें सुनना नहीं चाहता। सिद्धू मूसेवाला के गीत जब भी रिलीज होता है तो 1 मिनट में 10 मिनट में इतने मिलियन व्यूज हो जाते हैं, इतने उनके ना जो लिरिक्स है उनमें इतना दम होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हॉलीवुड के पास ट्यूपाक था तो हमारे पास भी सिद्धू मूसेवाला है। तो वो कहती हैं कि जो हमारी पंजाबी बोली है, जो हॉलीवुड के जो लोग हैं उन्होंने हमारी मतलब कि पंजाबी बोली को कितना सम्मान देने लग गए हैं, कितना मतलब कि उन्होंने ऊंचा कर दिया अपनी पंजाबी सभ्यता को, कल्चर को उतना ऊंचा करके गए हैं सिद्धू मूसेवाले जी। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मतलब कि देश नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब कि सिद्धू मूसेवाले को याद ना करता हो, सभी को रुला के गई हैं वो। आज भी मरने के बाद भी उनका वही रुतबा है, यानी कि उनका कम हो गया सारे पासे, मतलब कि जैसे अंधेर ही छा गया था ना उनके मौत के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने मरने के बाद भी वही जगह बना के रखी है। जो जीते जो उनकी जगह थी ना, आज भी वही जगह है, कोई कम नहीं हुई है। और कोई दूसरे सिंगर्स को सुनना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उनके लिरिक्स के आगे जो वो अलग लिखते थे, बिल्कुल अलग। जो बाकी सिंगर्स हैं वो तो उनके जो लिरिक्स हैं वो बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं खा सकते, मतलब कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो कुछ अलग टाइप के अलग मुद्दों पे लिखते थे, जिन मुद्दों पे वो आज तक कोई पंजाबी सिंगर लिख नहीं पाया है। तो वो अलग ही अपनी उनकी अलग पहचान थी। तो लेकिन हमें दुख की बात ये है कि उन्हें आज तक जो है जस्टिस मिल नहीं पाया है। तो लेकिन हम सभी को भगवान पर तो यकीन है कि एक न एक दिन तो वो बदला लेगा, और वो भी जो जिन्होंने मारा है ना
वो बहुत बुरी मौत मरेंगे, इतनी बुरी मौत जैसे कुत्ते की मौत मरेंगे वो। लेकिन फिर भी वो तो भगवान लेगा ही लेगा, लेकिन हम सभी लोगों को, जो हम आम आदमी हैं, हम सभी लोगों को उनके पिताजी के साथ, माताजी के साथ खड़े होना चाहिए उनके इंसाफ के लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, सभी उनके साथ, उनके पिताजी के साथ खड़े रहें, ताकि वो हिम्मत ना हार जाएं और हिम्मत हार के बैठ ना जाएं। शायद वो अभी तक तो इसलिए सांस ले रहे हैं कि हम सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ दिला सके। तो मतलब कि जो रुतबा था आपका कहने की, तो हम तो मर के वर्ड्स में भी नहीं कह सकते। जो सिद्धू मूसेवाले की प्रशंसा में एक वर्ड बन बोल नहीं सकते, जो बोले हैं वो भी शायद बहुत कम है। इतने महान व्यक्ति थे, दलेर थे, हम्बल थे, है ना। माता पिता की जो था, सभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। उनके पिताजी हमेशा उनके साथ खुश रहते थे, जहाँ जाते थे उनके पिताजी उनके साथ होते थे। तो इन्होंने अच्छी ट्रिब्यूट दी है, बिल्कुल सच ट्रिब्यूट दी है कि सचमुच 29 मई का वो काला दिन है, मनहूस दिन ही था, जब मतलब कि भगवान ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। लेकिन फिर भी वो अमर हो गए हैं, फिर भी अमर हैं। आज तक हमें 2 साल हो गए, फिर भी हम भूले नहीं हैं, हम याद करते हैं हमेशा। जब तक आसमान पे सूरज चाँद रहेगा ना, हम उनको याद करते ही रहेंगे, और कोई भी पंजाबी सिंगर उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कभी मतलब कि उनकी जगह नहीं ले पाएगा, वो अपने अलग ही थे, अलग व्यक्ति थे सबसे। जैसे अगर करोड़ है ना इधर खड़े, तो वो अलग हैं। जैसे सूरज अलग होता है ना, एक होता है, चंद्रमा एक ही होता है, इस तरह सिद्धू मूसेवाले जी भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही थे। जो बाकी तो सितारे हैं, जैसे सितारे चमक रहे हैं, तो वो तो सूरज जो है उनको सूरज भी कहा जा सकता है, चंद्रमा भी कहा जा सकता है। लेकिन जो सितारे हैं वो दूसरे पंजाबी सिंगर्स हैं, उनकी जगह कभी नहीं ले पाएंगे वो। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सच्ची ट्रिब्यूट थी ये। तो हम मौज से सुनते हैं। हाँ जी गाइस, ऑब्वियसली बहुत अच्छी ट्रिब्यूट थी, बहुत प्यारी ट्रिब्यूट थी, और बहुत इमोशनल भी कर दिया लास्ट में उन्होंने सबको। और बादशाह जो सिंगर वहाँ पे बैठे थे वो भी इमोशनल हो गए थे लास्ट में। जब हमको उनकी माँ ने कहा था ना। हाँ, क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने गाया ना, वो उनकी मदर को डेडिकेट किया उन्होंने। जो सिद्धू मूसेवाला पाजी की मदर को डेडिकेट किया। उनकी माँ कह रही है कि अगर मुझे पता होता कि सिद्धू तुमने मर जाना है, तो मैं एक की जगह 2 पैदा कर लेती। तो मतलब ये लाइन ही अपने आप में बहुत भारी है। और फिर वो कहते हैं कि पता नहीं केड़ी गल तो साढ़े तो रब रुस्से है। मतलब सही बात है, इतनी जल्दी वो चले गए हैं, 28 की एज में चले गए हैं, और वो 28 की एज में वो काम कर गए हैं जो शायद आने वाले 1 सेंचुरी में कोई ना कर पाए, आने वाले 100 सालों में शायद ही कोई सिंगर कर पाए, है ना। गाने तो आते ही रहेंगे अच्छे, ऐसा हम ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी जो सिंगर हैं वो अच्छे गाने नहीं गाते। सब सिंगर अपनी जगह अच्छी हैं, ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। लेकिन एक होता है ना यूनिकनेस, सबसे कुछ इंसान होते हैं कि वो सबसे अलग ही होते हैं। मतलब उनको ना, जितने एक कहते हैं ना कि हाँ सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितने भी अच्छे लोग हो ना, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये सिद्धू मूसेवाला पाजी थे ना, ये यूनिक थे, सबसे अलग थे, है ना। बाकी सिंगर जितने मर्जी अच्छे हों, पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। वो अपनी जगह अच्छे गाने गा रहे हैं, उनको भी लोग देखते हैं, बट सिद्धू मूसेवाला पाजी जैसा रुतबा कोई नहीं बना सकता। मैं ये मतलब मेरा मन तो ये कहता है कि आने वाले सालों में शायद ही कोई उनको भूल पाएगा। जो हमारी जनरेशन है वो तो कभी नहीं भूल पाएगी। और इन्होंने जो रंधावा जी सिंगर है, बॉब रंधावा, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दी है, बहुत प्यारी ट्रिब्यूट दी, है ना। तो स्टार्टिंग में कहते हैं कि उन्होंने मतलब सिद्धू मूसेवाला पाजी ਨੂੰ पता ਸੀਗਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, क्योंकि उनको थ्रेट्स आ रहे थे ऑब्वियसली, है ना। पता तो था कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि कहीं अकेले जाएंगे, या है ना, तो उनके साथ ऐसा हो ही जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि 29 मई का दिन मनहूस सी, और सच में वो मनहूस ही था, है ना। तो मतलब उस दिन तो ऐसा था कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कईयों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, हमें भी विश्वास नहीं हुआ था जब न्यूज़ आई थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, बस यही है कि जैसा उन्होंने बोला ना सॉन्ग में कि ਆਪਾਂ जस्टिस जट ਨੂੰ दबा के रहना है, ये मतलब सही बात है कि हमने उनको जस्टिस दिवा के रहना है। मतलब जो उनके सच्चे फैंस है ना, तो उनको दिलवा के रहेंगे हम जस्टिस, ठीक है। और उन फैंस में से हम भी एक हैं, क्योंकि हमें पता है कि रियलिटी में सिद्धू मूसेवाला पाजी कैसे थे, वो रियल में कैसे थे हमें पता है, ठीक है ना। हम उनको सॉन्ग से जज नहीं करते, वो उनके एक करैक्टर था, लेकिन वो रियल लाइफ में इतने हम्बल थे ना, तो वो उनको हमें पता, इसलिए हम उनको दिल से चाहते हैं, उनके सच्चे फैंस हैं। तो जो भी उनके सच्चे फैंस हैं, है ना, तो बस प्रे करें
उनके मम्मी पापा को हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है इस टाइम पे, है ना? क्योंकि सरकार का तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जब तक हैं, तब तक उनको एक हौसला बना रहेगा कि हाँ, कि सिद्धू मूसेवाला पाजी के जो फैन्स हैं वो हमारे साथ हैं। और मैं तो कहती हूँ कि दोबारा जन्म लेकर आ जाएँ। हम कितनी कई बार घटनाएँ सुनते हैं ना पुनर्जन्म की, तो हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि वो भी दोबारा, भगवान उनको भी दोबारा भेज दे इस दुनिया में, और फिर मतलब कि वो अपना कमाल दिखा सकें, है ना? बिल्कुल गाइस, हाँ जी। तो उम्मीद तो ऐसे ही करते हैं, है ना? तो क्या ही कर सकते हैं, पर अब तो ये भगवान के हाथ में है। तो बस बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है गाइस, जो जितने भी लोग हमें देखते हैं 10, 20, 40, 50, है ना? तो बस यही है कि अगर आप सच में उनके फैन्स हैं ना, तो सिर्फ गाने ना सुनें, उनके लिए प्रे भी करें, है ना? घर पे बैठ के भगवान से दुआ भी किया करें कि उनको इंसाफ मिल जाए जल्दी से जल्दी, ताकि उनके जो पेरेंट्स का जो मन है वो हल्का हो जाए और वो अपनी आने वाली ज़िंदगी सुख चैन से बिता सकें, है ना? तो हम भी उनके पेरेंट्स के लिए यही दुआ करते हैं कि उनकी भगवान उनको अच्छी सेहत दे। अच्छी सेहत रहेगी तो वो खुश रह पाएँगे। और है ना? कई लोग ऐसे होते हैं उनकी कॉपी करते हैं, मतलब कि उनकी आवाज़ की कॉपी करते हैं, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि ये तो लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी मर्जी वो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी आवाज़ थी ना, वो उसका तो मैं मतलब कि कुछ भी नहीं, जमीन आसमान का इतना फर्क है। उनकी आवाज़ की तो इतनी सुरीली थी, कभी कॉपी कर ही नहीं पाएंगे वो, है ना? और ये गलत भी है। और जो बात ओरिजिनल होती है तो ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही रहता है। बिल्कुल। इसकी निंदा उनके पापा ने की है भी, ऐसा मत करें। वही है ना, बस व्यूज़ लेने के चक्कर में, अपने आप की तरक्की लेने के चक्कर में सिद्धू मूसेवाला पाजी की आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं। वही है ना, हमारे देश में मैं अब क्या बोलूँ, मतलब कमियाँ तो बहुत है अगर गिनाने पे आ जाएँ, क्योंकि कहते हैं ना, तरक्की करने में ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वही है ना, कॉपीकैट भरे पड़े हैं हमारे, कॉपी करने वाले हमारे देश में बहुत हैं। मतलब अब खुद की आइडेंटिटी बनानी नहीं है, दूसरों को कॉपी करके आगे बढ़ना है। सिद्धू मूसेवाला पाजी ने किया किसी को कॉपी, तभी तो वो आगे गए हैं। अगर वो किसी की कॉपी करते ना, वो शायद इस लेवल पे ना आते। वो भी किसी ना किसी लेवल पे पहुंचते, पर इस लेवल पे ना आते। तो अपने आप को निखारो, अपने टैलेंट को निखारो, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको निखारो, तो किसी को कॉपी मत करो। तो यही है सक्सेस का राज, है ना? तो चाहे जल्दी मिले धीरे मिले, सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अपना खुद का एक टैलेंट को निखारो, जो आपके अंदर टैलेंट है, कॉपी मत करो। बस यही है, और उनके जस्टिस के लिए प्रे करो। तो ठीक है गाइस, बहुत अच्छी ट्रिब्यूट थी बॉब रंधावा जी की। बाकी गाइस वीडियो का एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम किसी नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।